See that question? For your convenience, I prepared the format on the board. Top heading you will be giving. This is double column cash book. If the person's name is given, double column cash book of Mr. Whatever the name is given in the question, Mr. Bharat. Okay? So like that way you have to prepare the format. Now, date column you will also run side by side. This is the date column. Here also the date column will work. A narrow column of date I will be making here. This is again particulars. And as in your book, he stresses upon ledger folio. So after particulars, again a narrow, very narrow column, you will be preparing of ledger folio. This is the format. Now, 1st April cash in hand. Though we started it yesterday, but we were not able to complete, so I am repeating it. 1st April, to balance brought down. Will you tell, will there be any time the negative balance of cash? Cash का कभी negative होगा नहीं, because payments can't exceed your expense. Whatever in your hand that you are going to spend. Cash का zero balance जरूर हो सकता है, लेकिन negative कभी नहीं होगा. Bank का negative हो सकता है, because bank gives you an option to withdraw the money more than the balance available. मतलब overdraw की facility देता है, लेकिन cash का कभी negative नहीं होगा. ये आपको पता होना चाहिए for your knowledge. So this was your 2,20,000. Then we have बैंक का overdraft है. फिर से 1st April को लिखिए. This is 1st April. Buy balance brought down. और गलती से इसे फर्स्ट कॉलम में मत लिखिएगा. This is to be written in the second column, and the second column is of bank, which he gives 60,000. Come to the next. Deposited into the bank means contra entry है. बैंक में पैसे जमा करवाए हैं 3rd April को. अप्रैल के नीचे कॉमास you can put. बैंक में जमा करवाए. बैंक टू कैश कितने जमा करवाए भाई? This was 80. Boys at the last, don't speak please. Buy bank. साथ में फिर से small c in small bracket. This is it. 80,000. Come to next. No, it's not essential. You can put with it, or you can write in ledger folio. You can use that column. Now April 4th, goods purchased. कल भी करवाया था. Buy purchases. और जीएसटी और एसटीएसटी इन एडिशन है. इन एडिशन है मींस 34,000 के ऊपर आपने 6% निकाला था. कल मैंने आपको ये सिखाया. बाय परचेसेस, बाय इनपुट, पहले तीनों टर्म्स लिख लीजिए. सीजीएसटी, बाय इनपुट, एसजीएसटी. परचेसेस कैश में ही है. इशूड है, चेक है भाई. सो यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट फुली. चेक इशू किया है तो बैंक के कॉलम में आएगा. परचेसेस के आगे 34,000 लिखिए. बता दीजिए मैंने कल कैलकुलेट किया था इसका 6%. 2,040 each. 2,000. Vaibhav, you are using phone if I am not wrong. Phone is in your bag and you are just. ठीक है. April 7th, cash purchases. Buy purchases once again. April 7 date का column run side by side. Buy purchases. Buy बोलो input. CGST and SGST. You will complete it. ये भी कल मैंने करवाया था. That was 16,000. 16,000 का 6%, 960, 960. चलिए जी आगे चलते हैं. कमीशन तक भी हमने कर लिया था. कमीशन तक ही किया था. By commission, you are paying. Had you been receiving commission तो यहाँ पे आता. Hereby you are paying commission तो यहाँ पे आएगा. और कमीशन भी आउटसाइडर को पेमेंट है. जीएसटी काट के कमीशन की पेमेंट करेंगे. By commission, साथ में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. So the commission was, yes, he was saying it is including GST. तो मैंने कल सिखाया था. Amount was, students see here, amount was 13,440. This is to be divided with 112. Why? क्योंकि 100 में दोनों टैक्सेस ऐड करके निकाली गई है. चाहो तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लो. अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअल अमाउंट आएगी. ये भी मैं कल सिखा के गई थी. एंड दैट कम्स टू यू 720 ईच. दोनों टैक्सेस बैंक के थ्रू तो नहीं है. चेक किया भाई. सो बैंक में लिखिए 720, 720, 1440 इसमें से टैक्स माइनस कर दिया. 13,440 में से तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी रही? दैट इज 12,000. यहां तक कल हमने डिस्कस कर लिया था. राइट. Now let's proceed to the next. You people see the, yes.
at the lower part of the board. Now, withdrew from bank for personal use. Drawings. By drawings लिखना है, इसकी सजा के कॉन्ट्रा मत करना. बैंक में से पैसे निकलवाए हैं पर्सनल यूज के लिए. By drawings. बैंक में से निकलवाए हैं भाई. By drawings. तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 2500. यहां तक मैक्सिमम बच्चों का ठीक था, सिर्फ ये कमीशन वाली एंट्री में कुछ मिस्टेक कर दी. They haven't written the taxes separately, but you are supposed to write the taxes separately because you need to compute it, then only you will be able to deposit it to the government. And secondly, जब जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो जब तक आपको इनपुट का नहीं पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कितना जमा करवाना है. So that's why it is to be written separately. अब आगे चलो. Received from Ved 10th April, received from Ved in full settlement. Received from Ved in full settlement of his account rupees 6,000. Half of the amount was deposited into bank on the same day. दो ऑप्शन है. पहले तो वेद से पूरा रिसीव कर लो और फिर 3,000 की कॉन्ट्रा कर दो. लेकिन क्योंकि सेम डे है, व्हाई नॉट विथ 3,000? 3,000 कैश में डालो, 3,000 बैंक में डालो, कॉन्ट्रा छोड़ो ना. या तो पहले 6 का पूरा कैश में डालो और फिर कॉन्ट्रा करो, राइट? या 3,000 सीधा नेट. तो मैं सेकंड वाली ऑप्शन के साथ जाऊंगी. इट सीम्स टू बी इजी वन. टू वेद 3,000 कैश में, 3,000 बैंक में, नो नीड फॉर कॉन्ट्रा. एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वेद, राइट? सो दिस इज व्हाट 3,000. आगे चलते हैं. इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक. ये भी बच्चों ने गलती करी, सजा के बाय इंटरेस्ट इधर लिख दिया. यू आर रिसीविंग भाई, और बैंक आपको आपके अकाउंट के बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है. यू नो, जब बैंक आपको आपके अकाउंट के बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देता है तो आपके खाते में पैसा जमा होता है, मींस आपके अकाउंट में सीधा जाता है. तो एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. ये कैश वाले कॉलम में नहीं लिखोगे, यू विल बी राइटिंग इट इन द बैंक कॉलम, राइट? टू इंटरेस्ट. और यहां पे ना क्रेडिटेड वर्ड नहीं लिखा, कलेक्टेड लिखा है. कलेक्टेड का मतलब आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला होगा और वो सीधा आपके अकाउंट में गया. किन चीजों के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है? डिबेंचर्स के ऊपर. You might have purchased the debentures of another company and interest is directly credited to your account, right? So this is 14,000 आपके अकाउंट में गया. Yes, अगला फिर से कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, कैश सेल्स. फिर से वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग जीएसटी. ये भी गलत किया बच्चों ने. अमाउंट वाज, सी एट द टॉप, और आई विल बी कैलकुलेटिंग हियर. चलो इधर ही देखो. सेल में जीएसटी ऐड था और जीएसटी ऐड करने के बाद अमाउंट थी 47,040 और जीएसटी हर केस में कितना है भाई? 6% दोनों को ऐड करके. इट मींस कि अगेन दिस अमाउंट इज बियॉन्ड 112. 112 के पीछे है. या तो 6 से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल अमाउंट निकाल लो, या 12 से मल्टीप्लाई करके कंबाइन अमाउंट निकाल लो, बाद में हाफ कर लेंगे. यू टेल मी, अगर 12 से मल्टीप्लाई करूं और 112 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? कंप्यूटर हरी अप, वेटिंग फ्रॉम योर साइड. 47,040 rupees is to be divided with 112 and is to be multiplied with 12. Yes, it will come 45, नहीं 5,040. चेक कर लो, 5,040 आएगा भाई. 112 से डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,040 इज कंबाइंड टैक्स. इसका हाफ ऑफ करो, हाफ ऑफ करेंगे तो 2520 जीएसटी 2520, एसजीएसटी भी 2520. तो इसमें से माइनस करो. 47,040 में से 5,040 माइनस करो 42,000. 42,000 की सेल होगी आपकी और बाकी आपने गवर्नमेंट को जमा करवाना है टैक्स. और क्योंकि सामान बिका है, सेल की एंट्री डेबिट साइड पे आएगी. टू सेल्स, कुछ नहीं कहा तो कैश के कॉलम में लिखेंगे बिकॉज ही इज राइटिंग कैश सेल्स. टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये एसजीएसटी. सो अभी बता दिया मैंने 42,000, 2520 मींस जो अमाउंट उसने मेरे को दे रखी थी 47,040, उसको मैंने 3 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया. तो जब आप इन तीनों हिस्सों को टोटल करोगे, यू विल बी गेटिंग द सेम टोटल व्हिच ही इज गिविंग यू इन द क्वेश्चन, एंड दैट इज 47,040 रुपीस. आगे चलते हैं. गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कोलकाता प्लस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%. सोना एंड कंपनी का नाम लिखा है, कहीं पे कैश की बात नहीं करी. चाहे सामान बेचा है तो आपको नहीं लगता उधार पे बेचा है? एम आई राइट? सोना एंड कंपनी को सामान बेचा है तो उधार पे बेचा है ना. तो आपने लिख के आना है नीचे अप्रैल 20
2 की ट्रांसेक्शन वी विल नॉट बी एंटरिंग इन द कैश बुक बिकॉज इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस। कौन सी बुक में जाएगी क्रेडिट सेल की एंट्री? यस, सब्सिडरी बुक में जाएगी, सेल्स बुक में जाएगी। 22 अप्रैल नहीं आनी, आगे चलते हैं। हाँ, अगला आएगा, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर अ डिस्काउंट। पहले ये देखो, सोना एंड कंपनी को कितने का सामान बेचा था? 36,000 का। ध्यान से देखना, 36,000 का सामान आईजीएसटी ऐड करने के बाद, और आईजीएसटी क्या है? दूसरी स्टेट में सामान जा रहा है और 12% है आईजीएसटी। इट मींस कि अगेन इट इज बियॉन्ड 112 इनटू व्हाट 12। इसकी अमाउंट कैलकुलेट करो जरा, मेरे को आईजीएसटी बताओ कितना आता है। आई एम रॉन्ग। प्लस लिखा है, इंक्लूडिंग नहीं लिखा। प्लस लिखा है, इंक्लूडिंग नहीं लिखा। इट मींस कि टैक्स एडिशन में 12% इसका सीधा निकालिए। देखें तो सही, सोना कंपनी से कितने का सामान हम लोगों ने बेचा है, कितना बोलो जी? 12 से मल्टीप्लाई, 36 इंटू 12, दिस इज 72, 7, 36 और 7, 43, 4320, 4320, 36,000 आपकी सेल की अमाउंट है, 4320 आपका क्या है? टैक्स है। ओवरऑल सामान ये, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, क्योंकि अगली एंट्री में मैंने देखना चेक कितने का मिला था। 2, 3, 40,320। कहता हमें चेक मिला 800 रुपया काट के। अब मैं वेरीफाई करवाऊंगी, 800 रुपया हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। 0, 2, 5, दिस इज 39। उसने अमाउंट लिखी हुई है, क्वेश्चन में अमाउंट गिवन। यू रिसीव्ड अ चेक आफ्टर द डिडक्शन ऑफ 800 डिस्काउंट एंड दैट अमाउंट ही इज गिविंग यू 39,520। अभी चेक मिला है, यू रिसीव्ड अ चेक। जब कभी भी चेक मिलता है, क्या हम कैश बुक में एंट्री करते हैं? जब तक हम उसे बैंक में नहीं जमा करवाते, हम एंट्री करते ही नहीं। इट मींस कि ना 22 अप्रैल की आनी है, ना 23 अप्रैल की आनी है, लेकिन अमाउंट आपको गिवन है। अब 27 अप्रैल को क्या बोला? डिपॉजिटेड द चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोना एंड कंपनी इनटू बैंक। अब भेजो भाई बैंक में, अब एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। इज इट क्लियर? व्हेन यू सेल गुड्स, गुड्स वर ऑन क्रेडिट, देन आफ्टर फ्यू डेज यू रिसीव्ड अ चेक, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, आपने अपने ड्रॉर में ही रखा हुआ अभी, तो अभी एंट्री नहीं आनी। जब आप वो चेक उठा के बैंक में भेजेंगे तब एंट्री आएगी ना। तो आपने 27 अप्रैल को एंट्री करनी है बेटा जी। क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। अब आंसर आना है। Only one child has attempted this question right and he got 6 on 6. 6 मार्क्स का था क्वेश्चन। जितने भी मेरे पास 25 या 27 पेपर आए हैं, उसमें से सिर्फ एक बच्चे ने पूरी तरह से ठीक किया है। So when you will be adding them up and you will be arriving at answer, I am writing the answer at the top. कैश कॉलम का आंसर आएगा 1,32,120 बाय बैलेंस कैरी डाउन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बैंक कॉलम का आंसर आएगा 22,500 बाय बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन। दोनों ही बाय बैलेंस कैरी डाउन है, पॉजिटिव आंसर है दोनों का, 22,500। इस साइड का टोटल मैं लिख देती हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। यू हैव द टोटल ऑफ दिस साइड। अब मेरा यहाँ पे आंसर मैच नहीं करेगा, इसने 6,000 डाला है, मैंने 3,000 डाला है। 2,70,040, 2,70,040, 2 लाख 20। और इस साइड का टोटल तो वी कैन डू ऑरली। 94, 97 में 39,520 ऐड करिए। 0,256, दिस इज 13, 136,520, 1,36,520। Yes, you can check it. Any doubt? So with this you will arrive at the right answer. Whosoever wants to ask anything